Good afternoon, sir. Good Yes, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so let's start a class. So today we'll discuss a very important topic in artificial intelligence. And you got to know that we have already covered more than 70% of your syllabus, but this one is also very, very important. Okay, I hope my voice and my is clearly audible to you and my screen is visible to you, right? Yes, sir. So then you can see that this topic is knowledge representation in artificial intelligence, right? So in the last class, I told you that what is knowledge base. नॉलेज बेस क्या है मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था जैसे आप लोगों ने डीबीएमएस में डेटाबेस बनाया राइट यू हैव stored some tables there right some information there similarly we collected or we extracted knowledge from different sources different experts then we used to store or keep it in a particular storage and that is known as knowledge base but what about representing that knowledge आप वो knowledge को कैसे represent करोगे right so there are few techniques in artificial intelligence for this knowledge representation तो knowledge representation का मतलब ये है आप कैसे वो knowledge को represent करके बताओगे okay how will you represent that knowledge so to solve complex problems, what we need large amount of knowledge and mechanism for representation and manipulation of the existing knowledge to create new solution. ठीक है कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करना होगा तो आपको क्या चाहिए नॉलेज चाहिए ठीक है लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए और इस नॉलेज को कैसे मैनिपुलेट करके कैसे उसको यूज करके आप सॉल्यूशन तक आओगे ठीक है वो उस टाइप का एक मैकेनिज्म चाहिए तो ये दोनों जरिए with the help of these two you can go for solving a complex problem right so for that you can understand that we have to represent the knowledge in the best possible way okay so that it will not again raise a problem for us while dealing with these problems so let's talk about that knowledge representation अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा नॉलेज क्या है नॉलेज बेस क्या है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमें क्यों करना पड़ता है ठीक है तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि टू सॉल्व ए प्रॉब्लम you need a large amount of knowledge. Suppose you are playing Ludo. Okay. So you should have basic knowledge about how to play Ludo. Okay. But if you expect the same thing from a computer, from a machine, तो मशीन को भी तो आपको वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ना वो इंफॉर्मेशन जब आप दोगे आप लोगों को याद होगा मैंने डीबीएमएस क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज ये सब के बीच क्या डिफरेंसेस है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है जब उस इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज वे में हम प्रेजेंट करेंगे और यूज करेंगे दैट बिकम्स नॉलेज तो ये लूडो का नॉलेज तो आपके पास है बट यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट मशीन टू हैव द सेम नॉलेज सो फॉर दैट you have to provide that knowledge to that machine with a proper form that machine can interpret so these things are with the help of some facts. Facts means things we want to represent. Truth in some relevant word. Man is mortal. You all know that. ठीक है तो man is mortal क्या है एक प्रकार का kind of fact right similarly today the means pandemic situation is going on pandemic condition is going on for why for what actually the universities and colleges that is being shut down okay the classes are conducted for online these things are facts so fact मतलब क्या है आपको समझ में आ गया so next thing representation of fact so facts internal representation than English representation यहाँ देखना हम कोई भी चीज अपने अभी तक के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है ठीक है सभी में हम इंग्लिश को ज्यादा ये करते हैं क्यों बिकॉज इंग्लिश इज अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड ओके एक तो कॉमन लैंग्वेज है जिसमें आप ट्रीट करते हो डील करते हो वो है इंग्लिश तो हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो भी है we try to frame it
or we try to actually frame the syntaxes that is somewhat similar to the English type of languages. English type means you cannot say that directly this is just the same English sentence, but that is somewhat like English that everyone we can understand. Okay, so facts, internal representation, reasoning programs, then English generation, English understanding. तो उस फैक्ट्स को इंटरनली आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है. अब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये जनरेट करके ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो है आप इनपुट करोगे. ठीक है, ये कैसे आप लोग देखोगे, ठीक है, क्योंकि यू नो दैट आवर मशीन्स अंडरस्टैंड 0 and 1, but still we do or we give command in English, right? So these things need some reasoning program, some internal representation. Now, initial facts, forward representation mapping, okay, then desired real reasoning, final facts, backward representation mapping, internal representation of final facts. So initial facts, forward representation mapping, internal representation of initial facts. Then final facts, that is internal representation of final facts. So आप ये एक चीज याद रखना, दो चीज होता है आपका फॉरवर्ड मैपिंग एंड बैकवर्ड मैपिंग. फॉरवर्ड मतलब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग से पॉइंट आउट कर रहे हो नेक्स्ट स्टेज और गोल तक, ठीक है. बैकवर्ड मतलब गोल से आप वापस आ रहे हो वो प्रीवियस स्टेट में. जब रीजनिंग और मैपिंग हम इस टाइप से करेंगे, सपोज शुरू से हम गोल तक जाएंगे तो वो कहलाएगा आपका फॉरवर्ड. अगर गोल से वापस हम इनिशियल फैक्ट्स में आएंगे तो दैट इज बिकमिंग आवर बैकवर्ड. ओके, so forward reasoning and backward reasoning. Now representation and mapping, how we will do that? See, Spot is a dog. Just take an example. ठीक है सर, तुम्हारे निजोर एग्जाम्पल लेवो पड़ा. आई एम गिविंग वन माय एग्जाम्पल. तो ये एग्जाम्पल के जरिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप ये चीज देखिए. ये आपको फॉरवर्ड रीजनिंग बैकवर्ड रीजनिंग में एक एग्जाम्पल दो तो क्या होगा. सपोज आपको कुछ बीमारी हो गया, ठीक है, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज. ओके, नाउ वी वांट टू नो द कॉजेस बिहाइंड दैट डिजीज. तो क्या होगा, आप ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज, तो आपको यहां से इनिशियल कंडीशन तक आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप क्या जान पाओगे कि व्हाट आर दोस रीजंस, व्हाट आर दोस कॉजेस that is of the why you have been suffering from this disease. That will become backward reasoning, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हो, गोल से इनिशियल फैक्ट तक जा रहे हो, ठीक है. फॉरवर्ड में आप यहां से कुछ काम शुरू करो और गोल तक जाओ. दैट इज सिंपल एनफ. दैट इज फॉरवर्ड. अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. स्पॉट इज ए डॉग, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है. आप एक चीज है, सपोज every dog has a tail. You know that this is a fact. ठीक है, पूछ हर एक कुत्ते का होता है ना. तो ये क्या होगा, it is actually for all the dogs. Now you have been given that Spot is a dog. So what we conclude, आप गोल से आप इनिशियल तक जा रहे हो, ठीक है. तो आपको गोल दिया है, मतलब गोल मतलब आप अभी जानते हो ये वाला फैक्ट है अभी, Spot is a dog. तो आपको ये पता लगाना है कि इसका क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ठीक है. तो हम क्या बोल सकते हैं, Spot has a tail because we know that every dog has a tail. Is this example clear to everyone? ये एग्जाम्पल समझ में आया सबको? यस सर. ठीक है. देन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. स्पॉट इज ए डॉग. डॉग एक सिस्टम सिंपल मैं बता रहा हूं कि जहां मेन फोकस कर रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डॉग, ठीक है. डॉग को स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन, स्पॉट, ठीक है. तो डॉग स्पॉट हम ऐसे लिख रहे हैं. इसका मतलब होगा डॉग अंडर ब्रैकेट जो स्पॉट लिखा है हमने, इसका मतलब होगा स्पॉट इज ए डॉग. नाउ एवरी डॉग हैज ए टेल. हर एक डॉग का क्या है, टेल है.
तो एवरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर ऑल, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ये सिंबल के जरिए। आपको ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वी टाइप का दिखाई दे रहा है जिसमें हमने क्रॉस करके रखा है। दिस मीन्स एवरी, दिस मीन्स फॉर ऑल, और इसी को बोलते हैं हम मैथमेटिक्स और ये इसमें क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, because this is for all. So every dog has a tail means for all x, dog x implies has tail x. ठीक है, dog x मतलब ये जो x है एक dog है, और has tail x means x has tail. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूं, for all x dog x implies has tail x. So for all x हर एक dog का क्या है, tail है, तो every dog has a tail. तो आप इससे क्या इंप्लाई होगा, क्योंकि हमें दो चीज पता लग गया, डॉग स्पॉट जो है एक डॉग है और हर एक डॉग का टेल है, तो वी कैन कंक्लूड दैट हैज टेल अंडर ब्रैकेट स्पॉट, so spot has a tail. Now please clearly tell me that this example, is this clear to you or not? Yes, sir. Good. So fact representation mapping is not one-to-one. Good representation can make a reasoning problem trivial. ठीक है, तो ये जो है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, because I will give you an assignment. Okay, I hope you have taken the screenshot. Multi-letter checkboard problem. Consider a normal checkboard from which two squares in opposite corners have been removed. The task is to cover all the remaining squares exactly with dominoes, and each of which covers two squares, no overlapping either of these on top of each other or of dominoes over the boundary of the multi-letter board are allowed. Can this task be done? अब इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लो, and you will try it by yourself and you will reply through comment. Now, good knowledge representation should exhibit some facts that we have to know. First, representational adequacy. Second, inferential adequacy. Then inferential efficiency. Then fourth, acquisitional efficiency. एक गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है कि व्हेन वी विल कॉल a knowledge representation as a good knowledge representation, then you should answer like that. A knowledge representation will be a good one if it possesses these properties. What is that one? One by one we'll discuss them. Representational adequacy means ability to represent all kinds of knowledge that are needed in that domain. ठीक है, उस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम जितने भी उस डोमेन का नॉलेज है उसको तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब उसके सारे नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम, तो क्या बोलेंगे तब, ये रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? Similarly, inferential adequacy means ability to manipulate representational structure such that new knowledge can be derived or inferred from the old. You may recall it from my example that I have cited in the last class that जब हम पुराने ओल्ड फैक्ट्स को लेके न्यू फैक्ट्स को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, राइट? तो अगर क्या ये चीज पॉसिबल है, मतलब ये जो फैक्ट्स इतना अच्छे से दिया गया है ताकि हम उस फैक्ट्स को यूज करके हम नया फैक्ट और नया नॉलेज डिराइव कर पा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि this inferential adequacy is being satisfied by our knowledge representation. Then inferential efficiency, ability to incorporate additional information into an existing knowledge base that can be used to focus the attention of inference mechanism in the most promising direction. Means जब भी हमें नया कुछ additional information चाहिए होगा और ये चीज को हम हमारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें क्या कर पा रहे हैं, उसका जो नॉलेज बेस है उसमें इंकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं, और साथ में उसका इंकॉर्पोरेशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। मतलब जो भी नया इंफॉर्मेशन और अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसको इजीली अडॉप्ट कर पा रहे हैं, और तब हम बोल सकते हैं कि
our knowledge representation is possessing inferential efficiency. ठीक है? Then acquisitional efficiency means ability to easily acquire new information. These two are related to each other. जब ये एबिलिटी होगा कि नया इंफॉर्मेशन को वो इजीली एक्वायर कर ले, तो दिस इज नोन एज एक्विजिशनल एफिशिएंसी. So inferential efficiency means what happened? You already have a knowledge, but you are upgrading that. And acquisitional efficiency means some new information being generated, and this knowledge representation can easily adopt that or easily acquire that. So they are the characteristics by which we can say that our knowledge representation is a good one. Please note that. Then there are different approaches to knowledge representation. KR मतलब knowledge representation. मैं यहाँ KR use कर रहा हूँ, ठीक है? And this question being asked several times that what are the approaches of knowledge representation or to knowledge representation. ठीक है, एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या है. तो पहला जो है रिलेशनल वन, सिंपल रिलेशनल नॉलेज बेस, जो आप लोग अभी तक यूज कर रहे हो. आप लोगों ने DBMS में भी देखा था, हमने एक टेबल बनाया था. क्यों? ताकि हम उसको वो इंफॉर्मेशन को इजीली रिप्रेजेंट कर पाए, राइट? प्रोवाइड्स वेरी वीक इंफरेंशियल कैपेबिलिटीज. इसका प्रॉब्लम यही है कि इससे हम नया चीज जनरेट करने में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है? तो मे सर्व एज अ इनपुट टू पावरफुल इन्फरेंस इंजिन. हाँ, इसको हम यूज कर सकते हैं दूसरे इन्फरेंस इंजिन में, बट इसको इससे डायरेक्ट कुछ इंफॉर्मेशन और नया इंफॉर्मेशन जनरेट करना इट्स रियली डिफिकल्ट. ओके, सो ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, प्लेयर, हाइट, वेट, हैंडेड एंड अबाउट सम प्लेयर्स, पीटर, अजय, जॉन विकी. तो दिस हाइट इंफॉर्मेशन, वेट इंफॉर्मेशन, हैंडेड इंफॉर्मेशन, ये क्या कर रहे हैं हम? वी ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट about the players' height, weight, handed with the help of a relational table. I hope this is clear to you. So this is known as simple relational knowledge strategy for KR. But यहाँ आप अच्छे से नोटिस करोगे तो देखोगे कि this fails to infer which right-handed player can best face a particular bowler. ठीक है, right-handed player, ये right, ये राइट, ठीक है? आप इसमें सारे इंफॉर्मेशन आप उम्मीद नहीं कर सकते. इसमें नया इंफॉर्मेशन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये डायरेक्ट बता पाए, क्योंकि अभी तक हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं. रिलेशनल इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल थिंग, ठीक है? आप एआई में क्या होगा, आप पार्ट ये स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या होगा, इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. कॉम्प्लिकेटेड मीन्स दैट मे बी कॉम्प्लिकेटेड, बट दैट विल show you in a better way to answer some new questions like which right-handed player can best face a particular bowler. आप ये क्वेश्चंस को देखोगे और इस टेबल को देखो, क्या ये क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं ये टेबल? No, it's not possible. So that's why I'm saying that simple relational knowledge is a kind of very weak inferential capabilities. Then next one is inheritable knowledge. अब इनहेरिटेबल नॉलेज से आप, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में किस चीज आएगा, इनहेरिटेंस. सेम थिंग है, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस एंड क्लासेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू इन अ जनरलाइजेशन हायरार्की. सो इनहेरिटेंस इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ इन्फरेंस बट नॉट एडिक्वेट. आप इनहेरिटेंस से क्या करते हैं? हम पेरेंट्स से चाइल्ड कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर और फ्लो होते हैं, हम वही रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? जैसे आप इस वाले एग्जाम्पल को देखो, एडल्ट मेल इज ए पर्सन हैंडेड राइट. पीटर इंस्टेंस वर्क्स एट टाटा कंसल्टेंसी. तो यहाँ ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? ये जो एडल्ट मेल इज ए पर्सन है, ठीक है? ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे क्लास से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, ठीक है? एडल्ट मेल इज ए पर्सन, और ये किस टाइप का है, राइट हैंडेड. मतलब इसको आप बोल सकते हो, आप अगर कंपेयर करोगे तो आपका मेंबर फंक्शन की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है? तो पर्सन इज राइट हैंडेड एंड एडल्ट मेल बिलोंग्स टू पर्सन एंड पीटर बिलोंग्स टू एडल्ट मेल and Peter works at Tata Consultancy.
तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन जहां हम एक हायरार्की मेंटेन करते हैं, ठीक है, क्लासेस की, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेबल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन अप्रोच. देन very good one, that is inferential knowledge. So facts represented in a logical form which facilitates reasoning. An inference engine is required. अब inference engine is required means कैसे आप देखोगे, ये वाला एग्जांपल फिर से देखो. Marcus is a man and all men are mortal. ठीक है, ये फैक्ट है. You know that all men are mortal. अब मार्कस क्या है? मार्कस इज ऑल्सो मैन. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, मार्कस इज मॉर्टल. तो ये जो इन्फरेंस इंजन की बात कर रहे हैं हम, वो ये चीज डिराइव करके देंगे कि मार्कस इज ऑल्सो मॉर्टल. वी हैव प्रोवाइडेड सम फैक्ट्स, वी हैव प्रोवाइडेड सम means initial facts, and from those facts the inference engine will conclude that this fact, this final conclusion, Marcus is mortal. ठीक है, is this example clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Then next one is the procedural knowledge. So by the term procedural knowledge, you've got to know that procedure, we some procedures being there, what we use here. So procedural knowledge means representation of how to make it rather than what it is. So here we will focus how to make it. Means हम यहाँ कहाँ फोकस करेंगे, उस पार्टिकुलर प्रोसीडियर. प्रोसीडियर मतलब आप जानते हो वो प्रोसीडियर क्या करते हैं, कैसे उस चीज को किए हैं. ठीक है, हाउ टू मेक इट, हाउ टू डू दैट, इसको फोकस करेंगे. ठीक है, so may have inferential efficiency but no inferential adequacy and acquisitional efficiency. Inferential efficiency रहेगा का, क्योंकि इससे आप इन्फर कर सकते हो, नया फैक्ट डिराइव कर सकते हो. एडिक्वेसी और एक्विजिशनल ये नहीं बोल सकते, क्योंकि नया फैक्ट आने से क्या वो काम कर पाएगा ना. आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन आपको स्क्वायर रूट डिराइव करके दे रहे हैं, बट आप चाहते हो वो उससे क्यूबिक रूट निकाल के लाए, तो वो पार्टिकुलर इक्वेशन क्यूबिक रूट नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप उसको मॉडिफाई नहीं करोगे. ठीक है, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है राइटिंग लिस्ट प्रोग्राम. लिस्ट स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोग्रामिंग, याद रखना. रिवीजन, इसको नोट डाउन करके रखना. लिस्ट स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोग्रामिंग. ठीक है. Now, what are the issues that we face in KR? So we have seen that these are the different approaches: relational one, inheritable, inferential, and procedural. Now, what are the issues? Important attributes, EJ and instance attributes, relationship among attributes like inverses, existence in a hierarchy, single valued attributes. Then choosing the granularity, high level facts may not be adequate for inference, low level primitives may require a lot of storage. So कुछ है जैसे कि attributes, important attributes यहाँ क्या है, EJ and instance. ये वाला एग्जांपल में देखना, EJ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एडल्ट मेल बिलोंग्स टू पर्सन. दैट इंस्टेंस दिखाई दे रहा है. तो ये सब डिटरमाइन करना कि ये कौन सा एट्रीब्यूट, ये जो पार्टिकुलर क्लास है, ये किस पेरेंट क्लास में बिलोंग्स करते हैं. ठीक है, हमारे लिए ठीक दिख रहा है, बट व्हेन वी इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, तो दैट इज ए काइंड ऑफ ब्रिंगिंग सम कॉम्प्लेक्सिटी. देन रिलेशनशिप डिटरमाइन करना, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, रिवर्स करना, इन्वर्स करना, ये सब देखेंगे हम क्या चीज होता है. और आई होप यू ऑलरेडी नो, बिकॉज इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आल्सो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू व्हाट इज इन्वर्स. ओके, सो एट्रीब्यूट्स का नेचर पता लगाना, किस टाइप का एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं. देन आपका क्या है, ग्रेनुलरिटी. ग्रेनुलरिटी मतलब लेवल वाइज आपको डिटरमाइन करना पड़ रहा है कि क्या कौन सा किस लेवल में है. हाई लेवल फैक्ट्स हैं, क्या हाई लेवल फैक्ट्स जितना दिया गया है उससे आप नया इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. ठीक है, और लो लेवल प्रिमिटिव्स मतलब कितना है, इससे क्या बहुत ज्यादा हम लो लेवल प्रिमिटिव्स यूज करने से क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा. ये आपको कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, मैं सिंपल सेंटेंस में समझा देता हूँ. ठीक है, हाई लेवल फैक्ट्स मतलब आप समझ रहे हो कि तो मेन जो फैक्ट्स है, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंड करके हम इन्फर करते हैं, हम नया इंफॉर्मेशन निकालते हैं. लो लेवल प्रिमिटिव्स मतलब बेसिक थिंग्स. बेसिक थिंग्स मतलब जो बेसिक थिंग्स को आप यूज करके वो इन्फरेंस करोगे. Now, John spotted Sue.
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? स्पॉटेड एज एन जॉन ऑब्जेक्ट्स यू। ये तो अभी तक समझ गए होंगे, क्योंकि स्पॉटेड कुछ काम हो रहा है, कौन कर रहा है, यहाँ एज एन कौन है, जॉन, और क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट्स यू। ओके, हु स्पॉटेड यू? आंसर जॉन। डिड जॉन सी यू? आंसर नो आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है, डिड जॉन सी यू, अब इस आंसर को ये क्या नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? इजीली, वेरी इजी, एक एक सेकंड में सोच के बता सकते हो। क्योंकि जॉन को ही पूछा है कि जॉन शुगर आएगी। ओके, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ इसको फिर से एक बार देखो, जॉन स्पॉटेड यू, मैं इसको रिप्रेजेंट किया, स्पॉटेड एज एन क्या है, जॉन, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। बट क्या इस स्पॉट को और डिटेल्स में मैंने यहाँ पे डाला है? मैंने लिखा, सपोज तुमने स्पॉट किया किसी को, स्पॉट करना मतलब क्या है, तुमने उसको देखा, ऑफ कोर्स। बट अब जब मशीन को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो उसको अगर मैं डिटेल में नहीं देंगे कि ये स्पॉट जो है, ये इसका इनडायरेक्ट मीनिंग सी करना ही है, देखना जो है, उसी को मैं स्पॉट करना बोल रहा हूँ। जब तक ये चीज डिटेल में नहीं दोगे तो मशीन नहीं समझ पाएंगे, राइट? आपका रोबोट नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, स्टोरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको वो डिटेल इंफॉर्मेशन देना होगा, तभी वो हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अब देखो, मैं इसको फिर से ये किया, स्पॉटेड एक्स वाई इंप्लाइज सॉ एक्स वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स ने वाई को स्पॉट किया, मतलब ही क्या है, एक्स ने वाई को देखा। स्पॉटेड एक्स वाई इंप्लाइज सॉ एक्स वाई। तब अगर मैं ये इसको भी अगर मैं इस नॉलेज बेस में रखता, तब जब ये क्वेश्चन उसके बाद करता कि डिड जॉन सी यू, देन नो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा यस। नाउ यू टेल मी वेदर दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट। आ गया समझ में अब? यस सर। यस सर। तो आपका ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब सिंपल अर्थ में आप एक रोबोट बना रहे हो, उसमें जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे, जितना ज्यादा नॉलेज बेस को वैल्यूएबल बनाओगे, ज्यादा रखोगे, उतना ही वो क्या होगा, कैपेबल होगा आपके हर एक क्वेश्चन और क्वेरी को सोल्व करने के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाट एक्चुअली दिस मींस, दिस आर द इश्यूज इन केस ऑफ नेयर। सो रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फाइंडिंग द राइट स्ट्रक्चर एज नीडेड। सो ये सब भी है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उसको भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, किस अक्षर से रिप्रेजेंट करोगे। सो वर्ड फ्लाई कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, ठीक है। जॉन फ्लेw टू न्यूयॉर्क, जॉन फ्लेw इनटू रेक, जॉन फ्लेw ए काइट। इन तीनों सेंटेंस में मैं क्या यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग द सेम वर्ड, दैट इज फ्लाई। नाउ यू टेल मी, आप इस मीनिंग को क्या होगा, मशीन को अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो वो क्या समझ पाएगा इस चीज को? क्योंकि एक बार आप बोल रहे हो जॉन फ्लू टू न्यूयॉर्क, इसका मतलब क्या है, न्यूयॉर्क गए हैं वो, देन जॉन फ्लू इनटू ए रेक, देन जॉन फ्लू ए काइट। तो ये इन दोनों का जो है मीनिंग, इन तीनों का मीनिंग एक दूसरे से अलग है, बट हम यहाँ पे सेम ही वर्ड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द सेम वर्ड। सो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज बेस को मजबूत बनाने के, मजबूत मतलब क्या है, ताकि एजेंट कैन अंडरस्टैंड everything, in our robot can solve the problems, okay, with respect to different questions. So आपको उस अक्षर को प्रॉपर डायरेक्शन में क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, सबको रिप्रेजेंट करना होगा। अब आ गया समझ में ये चीज? यस सर। ठीक है, ये एक किताब है, मैंने पहले आपको बताया था, रिच एंड नाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वेरी 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 गुड टेक्स्ट बुक। ठीक है, अभी IIT गुवाहाटी का भी एक प्रोफेसर इसमें है, तो इस किताब में इसके बारे में और डिटेल्स में दिया है, बट इतना जान लिया, इतना समझ लिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। नाउ कम टू ए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक सब लोग नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रोपोजिशन मींस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस whose value is either true or false। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। As for example, the sky is blue,
ठीक है, स्काई इज ब्लू बोला है मैंने, तो ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन और एटॉमिक प्रोपोजिशन क्यों है? क्योंकि एक ही यूज किया हमने, ठीक है। तो स्काई इज ब्लू, इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। राजेश बोल देगा हाँ मेरे लिए तो नीला दिख रहा है, ठीक है, और उसी साइड में सपोज गौतम ने बोल दिया नहीं मुझे पीला दिख रहा है, तो यस और नो में से ही होगा ना। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, यस सर। Yes, sir. तो स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो ऊपर से विक्टर ने आवाज दिया नहीं मुझे तो रेड दिखाई दे रहा है, अब तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो यस और नो में ही आंसर आ सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। द स्काई इज ब्लू दैट इज एटॉमिक प्रोपोजिशन, क्योंकि एक ही है। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये मोलिकुलर और कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन है। क्यों? इसमें दो जोड़ दिया है मैंने। स्काई इज ब्लू एंड द प्लांट्स आर ग्रीन। टुडे इज ए रेनी डे, ये एटॉमिक है। टुडे इज संडे, एटॉमिक है। 2 क्रॉस 2 4 एटॉमिक है। तो इन सब ना एक प्रोपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर यस और नो और ट्रू और फॉल्स में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है? सुबह बुझी पाया सा? एनी डिफिकल्टी? एवरीथिंग क्लियर ना? Yes, sir. বুজি পাই যাবা क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट হয় এখিনি। So sky is blue, আকাশখন নীলা। Okay, so this is true or false, differ from person to person, but what I mean to say, this is a proposition. And what type of proposition? This is atomic. And ये दोनों को जोड़ दिया तो this becomes molecular or complex. Sky is blue and the plants are green. Okay, then today is Sunday and it is rainy. That will become molecular. So this is proposition. Now, what are the terminologies related to this? So, properties of statements. Satisfiability is a sentence satisfiable or not if there is an interpretation for which it is true. So, satisfiability, I don't think that I need to explain it again. Satisfiability means whether it is satisfying or not. We wear woolen clothes. Yes or no? Similarly, contradiction. अब contradiction क्या है? किसी चीज का ऐसा इंटरप्रिटेशन करना जो सच है ही नहीं। इफ देयर इज नो इंटरप्रिटेशन फॉर व्हिच द सेंटेंस इज ट्रू। मैंने बोल दिया कि जापान इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इज इट ट्रू? नो, इट इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो इफ देयर इज नो इंटरप्रिटेशन फॉर व्हिच द सेंटेंस इज ट्रू, देन दिस बिकम्स ए कंट्राडिक्शन। देन वैलिडिटी, a sentence is valid if it is true for every interpretation. Like Guwahati is the capital of Assam. Yes or no? Yes, sir. No, sir. নিকিতাই ইয়েস কৈছো, তহঁতি মানে ভালকে মেপখন চা। দিছপুৰ, ঠিক আছে, দিছপুৰ is the capital of Assam. Okay, so okay, someone say no, that is good. So similarly, Haryana is the capital of India. Valid or not? Not valid, sir. Not valid. ঠিক আছে. So a sentence is valid if it is true for every interpretation. So satisfiability, contradiction, validity. Now some rules are there. Maximum of you, I think you already know, but still, commutative. Commutative means P conjunction Q implies Q conjunction P. Commutative মানে হৈছে মই যদি সহজ অৰ্থত এটা एग्जांपल दूं, मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, 2 + 3 = 3 + 2, क्या ये सही है कि नहीं? है या नहीं? Where 2 + 3 = 5 and 3 + 2 is also 5. क्या मैं 2 + 3 को 3 + 2 लिखूंगा तो अलग हो जाएगा क्या मीनिंग? यस और नो? जल्दी उत्तर दिया। So what is the question, please? मैं Can you ये बोल repeat? रहा हूँ, देखो कम्यूटेटिव का मतलब है जो ऑपरेंड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दो ऑपरेंड्स, उसको आप अदल बदल के भी, या अदल बदल मतलब उसकी पोजीशन शिफ्ट करके भी आप एक ही आंसर आपको मिलेगा। जैसे Yes, sir. 2 + 3 = 3 + 2, Yes, ठीक है, sir. ये तो जानते हो आप सभी लोग। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट Yes, लो, sir. प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जल्दी से ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लिया? अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पहला वाला प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पी कंजंक्ट, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये जो आप लोग इंटरसेक्शन के लिए यूज करते थे, याद होगा शायद।
ठीक है, Yes, इसको sir. हम एआई में यहाँ पे बोलते हैं कंजंक्शन, याद रखना, दिस इज नोन एज कंजंक्शन। और इसका ऑपोजिट वाले जो और के लिए या यूनियन के लिए आप यूज करते थे, यहाँ पर शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ट्रायंगुलर टाइप का होता है, तो दिस इज नोन एज डिसजंक्शन। ठीक है, नाउ एसोसिएटिव मींस सेम, P conjunction Q conjunction R is equal to P conjunction Q conjunction R. This is associative property. ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, स्क्रीनशॉट खींच लो, इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी समझ में नहीं आया तो मुझे बताओगे आप लोग, और पहले खुद ये चीज देखोगे कि क्या क्या है। आइडेंटिटी मतलब वो एलिमेंट जिसके साथ आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको अपना एलिमेंट ही मिलेगा, जैसे 1 into 2 is equal to 2, 1 into 5 is equal to 5, like that. सिमिलरली निगेशन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ आप कुछ ये करोगे तो क्या होगा, सपोज उसका कंजंक्शन लोगे तो 0 होगा, मतलब फॉल्स होगा, और यूनियन लोगे तो ट्रू होगा, क्योंकि आप लोग सभी जन जानते हो 1 conjunction 0 that is 1 and 1 conjunction 0 is 0, sorry, 1 disjunction 0 is equal to 1। ठीक है, डबल निगेशन ले लिया तो वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा, जैसे आपको सिंपल में बताओ तो -5 is equal to 5। ठीक है, सिमिलरली दिस लॉस प्लीज गो थ्रू देम at least for once, if any problem you find then do tell me। ठीक है, but these are very important, modus ponens, modus tollens। ठीक है, ये दोनों तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता ही रहता है। ठीक है, modus ponens, आप modus tollens, अब ये फिजिकल क्लासरूम होता तो मैं डायरेक्ट लिख के यहाँ बोर्ड में समझा देता, बट फिर भी मैं इसको एक बार समझा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, तो modus ponens मतलब क्या है, P implies Q दिया हुआ है और दिया हुआ है P। आपको ये पता है P होने से Q होता है, और आपको ये भी दिया है कि ये जो P है ये हो रहा है अभी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q भी होगा, क्योंकि यू नो दैट P implies Q। ठीक है, तो हम डिराइव करेंगे एक्सपार्टा मोडास पोनेंस Q। मैं रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से सुनना। ठीक है, P implies Q मतलब ये है कि P जब भी रहेगा उससे Q इम्प्लाई होगा, मतलब Q P से आ रहा है। आपको दिया गया है कि P है, तो आप क्या डिराइव कर सकते हो, Q भी है, तो दैट इज मोडास पोनेंस। अब मोडास टॉलेंस थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, P implies Q, ये दिया हुआ है P से Q होता है, अब दिया है निगेशन Q, मतलब Q नहीं हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है, उसका निगेशन हो रहा है। ठीक है, निगेशन मतलब निगेशन ऑफ ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स और निगेशन ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। तो निगेशन ऑफ Q दिया है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली निगेशन ऑफ P करेक्ट है, क्योंकि यहाँ Q होता तो मैं बोल सकता था Q है, बट यहाँ निगेशन ऑफ Q दिया है, सो निगेशन ऑफ P वी कैन डिराइव। मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है, P implies Q दिया हुआ है और दिया हुआ है निगेशन ऑफ Q। सो निगेशन ऑफ Q जब दिया रहेगा और साथ में आपको दिया होगा कि P से Q इम्प्लाई होता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो एज पर द मोडस टॉलेंस negation of P exists from this। So I hope modus ponens and modus tollens is clear to everybody। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So with this, I'm going to conclude today's lecture. One or two lecture or more lecture I'll take to complete this syllabus. But I'll give the recorded lectures of this one very soon. And one question I have already asked. Next question I am going to ask now. You all note, please. Okay. What do you understand by modus ponens and modus tollens? What do you understand by modus ponens and modus tollens? आप ये क्वेश्चन का आंसर इनका ये क्वेश्चन लिख के बता दोगे, और बिलीव मी ये क्वेश्चन आप अगर इन फ्यूचर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एवरीथिंग व्हाट आई हैव डिस्कस्ड टुडे यू गॉट इट। Yes? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So thank you. Thank you, sir.